Okay, this morning I'm going to be speaking from Ezekiel chapter 37. और आज की सुबह मैं पढ़ने वाला हूँ एजिकल की किताब उसका 37वां अध्याय। So if you got your Bibles, turn to Ezekiel chapter 37. अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलेंगे एजिकल की किताब उसका 37वां अध्याय। All right. Yeah. Father, we just want to come to your word this morning. Thank you for your presence this morning. Thank you for the word of God. Thank you, Lord. We are not a people without the word of God. And as we stand this morning before your word, I pray for your help, Lord, that we will understand and see the heart of God, that we will be envisioned, challenged, but empowered by the truth of your word. And we ask for the help of your Holy Spirit, that as we submit ourselves to your word, you will also change us to honor you and live for you. Amen. Amen. So that was a wonderful time of just knowing the presence of God this morning. और ये बहुत अच्छी सुबह रही जहाँ पर हमने परमेश्वर की उपस्थिति को उसकी हुजूरी को महसूस किया। Thank you for praying for us this last week. My sister-in-law suddenly expired, and so just thanks for praying and covering us as a family. और आपका धन्यवाद कि आपने हमारे लिए प्रार्थना किया कि हमारे रिश्ते में किसी की मृत्यु हो गई थी, तो आपने आपकी प्रार्थना ने हमें जो है बहुत ताकत दिया। Okay, this morning I'd like to just talk and start a series of messages on, as we look ahead, having a focus as Harvest of Grace this year. और जिस तरीके से आगे हमारा ध्यान जा रहा है, हम देखने वाले हैं उन चीजों को। All right, and I want to bring across that God's church is an army. और मैं आज का जो मैं बताने वाला वो ये है, परमेश्वर की कलीसिया सेना है। We see two visions here in Ezekiel. There is an army and a temple. और हम एजिकल की किताब में देखते हैं दो दर्शनों को, एक सेना को देखते हैं और मंदिर को देखते हैं। I thought let's draw lessons and set a course for this year from this book. और मैंने ये सोचा आइए इन चीजों से इन जो किताबों से सीखते हैं और अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं आगे चलने के लिए। And the two visions I want to speak of is one, over these few messages, is one, the valley of dry bones. और इसमें से जो एक है, सबसे पहला दर्शन वो ये है कि सूखी हड्डियों की जो घाटी थी। And two is the vision of this temple in the book of Ezekiel. और दूसरा मंदिर का दर्शन जो कि एजिकल की किताब में है। And we'll draw from the connection of both these visions. देखते हैं कि हम कैसे जो है उसमें से निकाल सकते हैं इन दोनों दर्शनों में से। All right, and we'll see Ezekiel speaks about bones, एजिकल बताता है हड्डियों के बारे में, a body, शरीर के बारे में, an army, एक सेना के बारे में, a temple or a dwelling, एक मंदिर और एक रहने की जगह के बारे में, and the nations being blessed और एक राष्ट्र जो आशीषित पाता है through this army. ये सेना के द्वारा। We're going to see it in 4 sections, about 6 messages. और 6 संदेश होंगे And इसके। the 4 sections is, one is seeing, और 4 जो है सबसे पहले जो है मोहर, 2 is speaking, दूसरा देखना, 3 standing in your position and role, और तीसरा ये है कि आपको जो जगह दी गई है और जो दिया गया है उसमें खड़े रहना, 4 being sent to transform. चौथा जो आपको बाहर भेजा जाए बदलाव लेकर आने। Okay, so let's read Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. और आइए पढ़ें एजिकल की किताब उसका 37वां अध्याय उसका 1 से 4 वचन। Is that the NIV? Great. Okay, Ezekiel 37 verse 1 to 14. Okay, I'm going to read it first in English and then Jack, you can read in Hindi. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, the bones that were very dry. He asked me,
Son of man, can these bones live? I said, Sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, prophesy to the breath. Prophesy, Son of Man, and say to it, this is what the sovereign Lord says, come, breath from the four winds, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the people of Israel. They say, our bones are dried up and our hope is gone. And say to them, this is what the sovereign Lord says. My people, I'm going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. पहला वचन, प्रभु की सामर्थ मुझ पर प्रबल हुई। प्रभु ने अपनी आत्मा के माध्यम से मुझे बाहर निकाला और घाटी में खड़ा रख कर दिया। मैंने देखा कि घाटी हड्डियों से भरी थी। प्रभु ने मुझे घाटी के चारों ओर घुमाया। मैंने देखा कि घाटी की सतह पर बहुत हड्डियां। मुझसे कहा, ओ मानव, क्या इन सूखी हड्डियों में मैं प्राण आ सकते हैं? मैंने उत्तर दिया, हे स्वामी प्रभु, यह तो केवल आप जानते हैं। प्रभु ने मुझसे फिर से कहा, तू इन हड्डियों से नबूवत कर। तू इनसे ये कह, ओ सूखी हड्डियों, प्रभु का यह संदेश सुनो। स्वामी प्रभु सूखी हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण फूंकूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम में नसें भरूंगा, तुम्हारे कंकाल पर मांस चढ़ाऊंगा। मैं उसको त्वचा से ढकूंगा और तुम में प्राण से परिपूर्ण कर दूंगा। तब तुम जीवित हो जाओगे और तुम्हें अनुभव होगा कि मैं ही प्रभु हूं। अतः प्रभु ने जैसा मुझे आदेश दिया वैसा ही मैंने किया। मैंने नबूवत की। जब मैंने नबूवत कर रहा था तब आवाज सुनाई दी, मानो हड्डियां कड़कड़ा रही हैं। मैंने देखा कि हड्डियों के पास आई और अपने आप हड्डी से हड्डी जुड़ने लगी। मैं उनको देखता रहा। उन पर नसें भर आई, उन पर मांस चढ़ गया, उन पर मांस त्वचा से ढक गया, किंतु उनमें जीवन का सांस नहीं था। तब प्रभु ने मुझे आदेश दिया, ओ मानव, नबूवत कर कि तू जीवन के सांस को मेरा यह संदेश सुना। तू उससे यह कहना, ओ जीवन के सांस, तुझसे स्वामी प्रभु यो कहता है, चारों पवनों से आ और इन शवों के प्राण फूंक कि ये जीवित हो जाएं। अतः मैंने जीवन के सांस को प्रभु का संदेश सुनाया जैसा प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। तब शवों में जीवन का सांस भर गया और वे जीवित हो गए। वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे संख्या में इतने अधिक थे मानो विशाल सेना हो। तब प्रभु ने मुझसे कहा, ओ मानव, ये हड्डियां मानो इज़राइल के सब वंशज हैं। देख, वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हो चुके हैं। अतः
तू उनको मेरा ये संदेश सुना, तो उनसे यह नबूवत करना, स्वामी प्रभु यो कहता है, ओ मेरे नीज लोगों, मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और उनमें से तुमको निकालूंगा, मैं तुमको तुम्हारे देश इज़राइल में वापस लाऊंगा। तब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और उनमें से तुमको निकालूंगा, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं ही प्रभु हूं। मैं अपनी आत्मा तुम में प्रतिष्ठित करूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम्हारे अपने नाम के देश में पुनः बसाऊंगा, तब तुम्हें अनुभव होगा कि मैंने तुम्हारे प्रभु ने कहा था और मैंने वचन के अनुसार उसको पूरा भी किया था। प्रभु की ये वाणी है। Amen. All right, so in this chapter, और इस अध्याय में Ezekiel is asked to, he's given a vision, he's asked to go and in this vision and see what Israel looks like. और प्रभु ने ऐसा किया कि इज़ेकियल जो है वो जाता और प्रभु से दिखाता है कि इज़राइल की क्या हालत है। And he's taken up and down, to and fro. और उसको प्रभु घुमा रहा है वो पूरी जगह पर। And all he sees is a valley of completely dry bones. और वो देखता है कि एक ऐसी घाटी दिखा रहा है परमेश्वर उसको जिसके अंदर सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं। And he is asked this question. और प्रभु से सवाल पूछता है, Can these bones, Lord, only you know? और इज़ेकियल कहता है प्रभु ये तो आप ही And God जानते हैं। says, prophesy. और प्रभु कहते हैं भविष्यवाणी कर And say to the bones. और इन हड्डियों से बोल। And they assemble together. और वो एक साथ जुड़ने लगती है। And then the tendons come and the flesh comes and the skin comes. और हम देखते हैं हड्डियां जुड़ने लगती है, उन पे मांस आने लगता है, उस पे जो है चमड़ी त्वचा आने लगती है। And then God says, prophesy the breath of God. और प्रभु कहता है इनके ऊपर नबूवत कर, भविष्यवाणी कर प्रभु की उस श्वास को। And as he prophesies, और जैसे भविष्यवाणी करता है life comes into those bodies. और उन शरीरों के अंदर जो है जान आ जाती है। And suddenly there's an entire army that is standing up. और अचानक से होता क्या है कि ये जो है एक सेना के जैसे खड़े हो जाते हैं। But when Ezekiel is taken to say, go and have a look at what you see. और जब प्रभु उसको लेकर जाते हैं उसको कहते हैं देख। What he sees is only dry bones. और इज़ेकियल देखता क्या है, सिर्फ सूखी हड्डियां। There's not even a single body. वहां पर एक पूरा अक्खा शरीर भी नहीं है, Just lifeless bones. और ऐसे निर्जान जिसमें बेजान जो है हड्डियां पड़ी हैं। And if any one of us who ask the same question, what do you see? अगर हमें को भी ये सवाल पूछा जाए कि तुम्हें क्या दिख रहा है, We'd probably the same. We'd say we just see bones. और हमारा भी जवाब बिल्कुल वैसा ही होगा कि हम सूखी हड्डियां देख रहे हैं। And sometimes when we look at God's people, or sometimes when we look at the church, this is what we see bones. और कई बार ऐसा होता है कि हम जब कलीसिया को देखते हैं, पर प्रभु की जो लोगों को देखते हैं, हम भी जो है सूखी हड्डियों को देख रहे होते हैं। And in Ezekiel 37, God gives a view of how his people really need to see themselves. और यहाँ पर प्रभु दिखा रहे हैं कि परमेश्वर के लोगों को कैसे अपने लोगों अपनी कलीसिया को देखना चाहिए। Amen. God wants you to have a view of how you should see yourself. और प्रभु चाहता है कि आपका वो ये नजरिया हो जाए कि आप किस नजर से कलीसिया को देख रहे हैं। God wants every church to understand and have a view that he sees of what every local church is. और प्रभु चाहता है कि हमारा नजरिया भी बिल्कुल उसके नजरिए के जैसा हो जाए, जिस तरीके से वो अपनी कलीसिया को देखता है वैसे हम भी उसकी कलीसिया को देखें। And here in this picture of bones, God gets him to understand, to see something that's insane and ridiculous. और अब जिस तरीके से प्रभु उसको ये दर्शन दिखा रहा है जो कि एकदम अजीबोगरीब है, An army. एक सेना। In Ezekiel 37 verse 10, और 37 के 10 में he said, I prophesied as he commanded me, और जिस तरीके से उसने मुझसे कहा मैंने उसका आदेश माना और भविष्यवाणी करी, and read, और वो जीवित हो गए, जिंदा हो and गए, stood up on their feet, और अपने पैर पे खड़े हो गए। a vast army. एक बहुत बड़ी संख्या में एक सेना खड़ी हुई। Now it doesn't make sense here given the situation. क्या ये मतलब रखता है, ताल्लुकात रखता है उस हालत को देखते हुए?
There's lifeless bones. यहाँ पर बेजुबान और जो है बेजान हड्डियां, And so often Christians and the church can look like this. और हो सकता है कलीसिया और जो मसीह लोग हैं, क्रिस्ती लोग हैं, वैसे देख सकते हैं। But God shows something different to Ezekiel. पर परमेश्वर ने इज़ीकियल को कुछ अलग दिखाया, An amazing, vast army. एक ऐसी विशाल सेना। Amen. Amen. And it is something all of us need to lay hold of. और यही बात को हम में से हर एक को जो है पकड़ लेना है। That though there is bones lying, और हाँ, हो सकता है कि वहां पर सूखी हड्डियां पड़ी हो, God shows the reality that He sees. और प्रभु उस सच्चाई को दिखा रहा है जो सच्चाई प्रभु खुद देखते हैं, How He always sees His people. कि वो कैसे अपने लोगों को देखता है, How He always sees His church. कि वो कैसे हमेशा अपनी कलीसिया को देखता है। A vast army. एक विशाल सेना। Amen. You all aren't convinced about it. All right, this morning, आज की सुबह में as we look at the series of messages, I want us to see what God sees of you. और जिस तरह से इन संदेशों की श्रृंखला को हम देखते हैं, मैं चाहता हूं आप देखें आपके बारे में प्रभु आपको कैसे देखते हैं। Amen. I hope you're a little bit stirred in your spirit and in your heart. और मुझे उम्मीद है कि आप अंदर से जो है थोड़े जो है हिलाए गए हैं। Now, what is the situation of Israel? और इजराइल की क्या हालत है? They are exiled. और वो जो है एकदम बाहरी देश में है, They've been taken out of their land. अपने देश से उसको बाहर कर दिया गया है, There's no hope. और कोई उम्मीद नहीं है। They resemble lifeless bones. और वो जो है सूखी हड्डियों को प्रदर्शित They करते are हैं, defeated and scattered across the nations. हारे हुए और बिखर गए हैं। Now, God's not just looking at their potential now. और प्रभु जो है उनकी क्षमता को अभी नहीं देख रहा, He sees what He has always planned for His people. और प्रभु वो देखता है कि जो उसने योजना बनाई है अपने लोगों के लिए, An army that will take the world. एक ऐसी सेना जो संसार को ले लेगी। Amen. And no matter how defeated, और मायने रखता कितने भी हारे हो, God's purpose stands. प्रभु का मकसद अड़ा रहेगा, There's खड़ा an रहेगा। army that will come forth from defeat. और एक ऐसी सेना खड़ी होगी जो हार में से निकल कर खड़ी होगी। No matter how small you are as a people or how small a church is, और मायने रखता आप कितने छोटे हो, मायने रखता कितनी छोटी कलीसिया से आते हो, no matter how lifeless or in despair you may feel, और मायने नहीं रखता कौन से हालातों में हो और कौन सी जो है बेजान हालात में से आप आ रहे हैं। God's clear of one thing. प्रभु आपको ले एक बात को लेकर बड़ा पक्का है, There's an army coming forth. एक बड़ी सेना खड़ी हो रही है। Amen. And when that picture was given in Ezekiel, और जब इस दर्शन को दिया गया इज़ीकियल में, it was actually a picture of what the New Testament church will be. और ये एक दर्शन था जो आने वाली जो नई करार की कलीसिया उसके बारे में। This is a picture of God's people in New Testament times. ये प्रभु के लोगों की छवि थी जो नए करार में आने वाली है। An army that will take the world. एक ऐसी सेना जो संसार को लेगी। I don't know how and what you feel about that, अब मुझे नहीं पता कि आपको क्या महसूस हो रहा है इस बात को लेके, but this is God's word. पर ये प्रभु का वचन है। All right, you're an army. आप एक सेना है, You're an army. आप एक सेना है। I know what you're thinking. मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, Many of you may be thinking, no, I'm just a bunch of bones. और आप सोचते रहे मैं तो सिर्फ जो है हड्डियों का एक समूह हूं बस। But God says you're an army. और प्रभु कह रहा है आप एक सेना है। And the New Testament, it has the language as well of the army. और वहां पर हम देखते हैं नए करार में जो है एक भाषा है इसकी। Paul writes to Timothy in 2 Timothy, और पौलुस लिखता है इसके 2 तिमुथियुस में, endure hardship as a soldier of Christ. और तुम्हारा दिल हो कि तुम एक मसीह के सैनिक हो। No one serving as a soldier gets involved in civilian affairs. और जो कोई सेना में है वो शहरीय के मामलों में नहीं पड़ता। Paul writes in the book of Ephesians chapter 6, और लिखता है पौलुस इफिसियों की किताब में,
Put on the full armor of God. प्रभु का पूरा जो है वस्त्र Okay. धारण कर लो. That's the language of army to the church. Put on the armor of God. और वे कहता है पूरा जो है वस्त्र शस्त्र पहन लो प्रभु का. Paul writes to in the book of Romans, chapter 8, रोमियो 8 में वो ये लिखता है, we are more than conquerors. हम विजेताओं से बढ़कर हैं. The army was God's plan. और जो सेना है वो प्रभु की योजना है. And something he wants us to lay hold of. ताकि वो चाहता है इस बात को हम पकड़ ले. But the army it's more than that. और उससे बढ़कर है. We are commissioned हमें नियुक्त किया गया, चुना गया है to take nations. प्रभु के लिए, राष्ट्र को लेने के लिए. When you think of an army, जब आप सेना के बारे में सोचते हैं, we're not just thinking of a family, we're not just thinking of a fellowship. हम सिर्फ परिवार के बारे में नहीं, एक संगति करने के लिए बारे में नहीं सोचते. All right? One of the prime characteristics और सबसे जो है मुख्य उसकी विशेषता ये है of an army, एक सेना की, it is commissioned वो नियुक्त किए जाते हैं. and empowered people to take the world. और ऐसे लोग जो आगे जाके संसार को लेंगे. Amen. A disciplined, unified people एक ऐसे लोग जो अनुशासन से भरे हुए हैं with one clear purpose: और उनका मकसद साफ है, take the world. संसार को जीतना. And when Jesus said in Matthew 28, go make disciples of all nations. और जैसे मत्ती 28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जाओ और राष्ट्र भर में शिष्य बनाओ. May we be equipped to और- understand और हम इस बात को लेकर एकदम सशक्त हो जाएं समझने के लिए. we are commissioned हम जो है नियुक्त किए गए हैं to change cities and nations. शहरों को और राष्ट्र को बदलने के लिए. Amen. Are you with me still? क्या आप बने हमारे साथ में अभी? All right. We are God's force on planet Earth. और हम जो है प्रभु की ताकत है इस धरती पर. We may get a few bruises, हमारे पास कुछ घाव हो सकते हैं, but there's a battle and a war to win. Take the world. पर एक ऐसी जंग है जिसको लड़ना है और जीतना भी है. So, चित्र है हड्डियों का. but God says, out of these bones, I'm raising a people with a commission. और वो ये कहता है इन्हीं हड्डियों में से मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो नियुक्त किए गए हैं. I'm raising an army, they will fulfill it. मैं एक सेना को खड़ी कर रहा हूं जो आगे जाके इसको पूरा करेंगे. Amen. Now, I want to say here, और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ their पर ये कहें, commission, वो नियुक्त किए गए हैं. God doesn't raise up spectators. और प्रभु जो है सिर्फ दर्शकों को खड़ा नहीं करता. You see, they stood on their feet, और वहां पर लिखा है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए. an exceedingly great army. और ऐसी महाकाय विशाल सेना. God was not, his goal was not just a people rising up with a bit of movement and rattling. और सिर्फ प्रभु का ये दर्शन नहीं था कि कुछ लोग उठे कड़कड़ाहट करके हड्डियां जुड़ के सिर्फ उठेंगे. Amen. As Ezekiel prophesied, there was a sound of movement, there was a sound of rattling. और जैसे एजिकेल ने नबूवत किया, उसने भविष्यवाणी करी, हड्डियां कड़कड़ाने लग गई, हिलने लग गई, जुड़ने लग गई. God doesn't want a people that are only rattling and, sometimes shaking in the church under the power of the Spirit, which is necessary, but He doesn't want that. He was mobilizing an army with a commission. और सिर्फ प्रभु ये नहीं चाहते कि सिर्फ जो है हड्डियां कड़कड़ाए, लोग सिर्फ हिले. प्रार्थना के समय में हाँ वो जरूरी है, वो आत्मा से होता है, पर सिर्फ उतना तक का परमेश्वर सीमित नहीं है. परमेश्वर चाहता है एक ऐसी सेना जो अपने पैर पे खड़े हुए, जो नियुक्त किए गए हैं वैसे लोग खड़े हो. Somebody say amen. कोई मैन कहे. You are called not as a crowd. When Jesus came on earth, crowds gathered, but He wasn't after a crowd. और प्रभु जो है आपको सिर्फ भीड़ का हिस्सा होने के लिए नहीं बुला रहा, वो भीड़ से अलग भी चलते थे. God's not after crowds on Sunday mornings. प्रभु भीड़ के पीछे नहीं है जो हर रविवार को आती है. He's after an army, वो एक सेना के पीछे है. after
a people that are commissioned. ऐसे लोग के पीछे हैं जो नियुक्त किए गए हैं। I wish you were a little bit more excited about that. और थोड़ा उत्साहित हो सकते थे इसको लेके। Amen. Whether you like it or not, आपको पसंद आए या नहीं आए, you're a commissioned force. आप परमेश्वर के जो है नियुक्त किए हुए बल है, So उसकी you're ताकत है। commissioned, आपको नियुक्त किया गया है। mobilization, not crowds. सिर्फ जो है काम किए जाने वाले ऐसे लोग, ना किसी भीड़ का हिस्सा। Now, though God meets our needs and blesses us, और प्रभु हमारी जरूरतों को जो है पूरा करता है, हमको आशीष भी करता है। church is not about needs and blessings and promises only. और कलीसिया सिर्फ जरूरतें, प्रार्थनाएं और प्रतिज्ञा इन सब तक ही सीमित नहीं I है। want us to understand we are a commission. The one thing He wants is the purpose that's upon your life and mine. और हाँ, ये चीजें चाहिए, पर प्रभु चाहता है कि उससे भी बड़ा जो है उसके मकसद जिसके लिए उसने आपको नियुक्त किया, उस बारे में आप जाने। Have you got it? क्या आप समझे? So, can you tell your neighbor, अपने बाजू वाले से कहें, listen, together we're an army with a purpose. और अपने बाजू वाले से कहें, आप और मैं मिलकर एक सेना है जो आगे इन चीजों को लेंगे। Amen. 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 Yeah. So wherever you're working, और जिधर भी आप काम कर रहे हैं, you're an army there. आप वहां पर भी सेना है। Yes? Where you live, जहां पर आप रह रहे हैं, you're part of this army. आप इस सेना का हिस्सा हैं, And God's going to use you. और प्रभु आपका इस्तेमाल And करेंगे। I want us to be immersed this morning with an awareness. This is not new. It's just being aware this year again. This is our purpose. और मैं चाहता हूं इस बात को आप अंदर पूरा सोख ले, एक बार अब उससे लथपथ हो जाए, अपने आप को डुबा ले इस बात के अंदर। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जो है इसको हर बार हम सुनते हैं, पर इस समय आ चुका है इस बात को लेकर आप When जागरूक we're हो जाएं। looking at army, we see commission, हमने देखा सेना के बाद फिर हमने देखा नियुक्त। not crowds, mobilization. सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, बल्कि काम भी करना है। Not just needs. Now needs will be met in part, but its purpose. जरूरत ही नहीं, आपकी जरूरतें पूरी होंगी, पर जो है आगे मकसद भी है। And number 4, it's corporate. You see, it was a vast army. It's something corporate. और जो है एक साथ मिलकर हम देखते हैं कि पूरी सेना एक साथ खड़ी हुई, तो ये है एक साथ करने वाला काम। Amen. So if God's raising churches today, it's not a one-man show. और प्रभु जो है कलीसिया को उभार रहा है, सिर्फ वो एक व्यक्ति, एक खिलाड़ी नहीं है। Not just a few leaders and a few people who are involved in ministry. और सिर्फ जो है सेवकाई में कुछ लोग हैं, कुछ लोग सेवकाई में सिर्फ वो लोग ही नहीं। But God wants everyone प्रभु चाहता है कि सभी लोग functioning. काम करें। Amen. That means He wants you functioning. प्रभु चाहता है कि आप काम करें। Your role is not just attend on Sunday and attend a house group. No, your role is function in the world with the purpose you've been commissioned with. और प्रभु चाहता है कि आप सिर्फ यहाँ पर बैठे ही नहीं रहे, बल्कि आप अपना कार्य करें, आपको जो भूमिका में आपको बुलाया उसमें। Amen. That's who you are. That's who I am. ये आप है, यही वो मैं हूं। Corporate. एक साथ। And if we can get this, अगर इस बात को हम पकड़ पाए, we will see this vision of Ezekiel fulfilled. हम ये जो एजीकेल का दर्शन है इसको पूरा होते हुए देखेंगे। Bones coming to life. सूखी बेजान हड्डियां जीवन पाते हुए Are becoming an army. एक ऐसी सेना बन रही है, Centered in our commission. और वो एक साथ केंद्रित है उनके नियुक्ति पर। Taking the world. संसार को जीतना, And every single person here fulfilling your role. और यहाँ पर बैठा हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका को पूरा कर रहा है। Someone say amen. कोई आमीन कहे। Do you see any army people only sitting down on Sundays?
कि आप कभी जो है सेना के किसी व्यक्ति को देखा रविवार को आके सिर्फ बैठते Any हैं? soldiers who've got a gun where it's always sitting down on Sunday in their seat? क्या किसी ऐसी सैनिक को देखा है कि वो बैठा रहता है हर रविवार को? They are assigned a role in their platoon or in their division. They are part of an army. और उनके गुट में उनको जो है एक तरीके की भूमिका सौंपी जाती है, And every one of us और हम में से हर एक is a soldier of Christ. यीशु मसीह का सैनिक है। And the crux, और मसीह, I want the crux of these vision messages और ये जिसे इन टुकड़ों को जिस तरीके से हम सुनते हैं, is you knowing your position in this army and your role, how you are to function. आपको अपना ओहदा और अपनी जगह पता है और आपको अपनी भूमिका भी पता है, तो इससे जो है आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। Amen. I'd like this year for us to get more into the space of understanding our commission as an army. और मैं चाहता हूं इस साल में आप अपने आप को समझे अपने बारे में कि आपका क्या हिस्सा है उसकी सेना में। 2 Corinthians 5:15, 16 says this. 2 कुरिन्थियों की किताब 5 का 13। 2 Corinthians chapter 5, verse 15 and verse 16. 2 कुरिन्थियों का 5। It says, and Christ died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. मसीह सबके लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे। Amen. So he's saying if we believe in Christ, और हम ये कहते हैं अगर हम मसीह में विश्वास करते हैं, we no longer, this is a characteristic of army, we don't live for ourselves anymore. और ये जो एक खासियत है एक सेना की कि हम वो खुद के लिए नहीं जीते, We don't live only for needs, we don't live only for blessings, that's living for ourselves. और ये अपनी जरूरतों के लिए अपने आशीषों के लिए नहीं रहते, ये अपने लिए जीना होता है। But we live for him who died for us. पर हम उसके लिए जीते हैं जो हमारे लिए मरा। So verse 16 says, 16वां वचन ये कहता है, because of this, सो इसीलिए from now on, अब से we don't regard anyone from a worldly point of view. और इसीलिए हम किसी को भी सांसारिक दृष्टि से नहीं देखते। All right, so we cannot regard Ajay as some master chef India. और इसलिए भाई अजय को हम जो है मास्टर ऑफ इंडिया के तौर पे नहीं देखते। No, he's a soldier, he's an army. देखिए वो सैनिक है, वो एक सेना है। Where he goes, जहां पर वो जाते हैं he takes a message, he takes the commissioning of the army. और वो संदेश को और सेना को लेकर जाते हैं। Amen. We don't regard Kasturi as someone from a worldly point of view. She is part of the army. और हम आंटी कस्तूरी को जो सांसारिक दृष्टिकोण से नहीं देखते बल्कि वो एक सेना का हिस्सा है। You are part of the army. आप सेना का हिस्सा है। Amen. Don't, no more from a worldly point of view. सांसारिक दृष्टिकोण से अपने आप को मत देखिए। And God introduces this in this chapter, और प्रभु इस बात को लेकर आते हैं इस अध्याय में, an army. सेना। Now I want you to talk to someone else, maybe two or three of you together. How do you view yourself? Do you view yourself from a worldly point of view? Oh, I've got this money to earn, I've got this, my family look after, which is all necessary. But is that all that you see about yourself? और एक दूसरे से आप ये बात करें, आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आप सांसारिक नजर से देखते हैं, परमेश्वर की नजर से देखते हैं? मेरी ये जरूरत है, मेरे को अपने घर का ये करना, हाँ वो करना है, पर वो जो है वो सांसारिक है, पर किस नजर से आप अपने आप को देखते हैं? How do you view the church? कलीसिया को कौन सी नजर से देखते हैं? The church should be the place which is blessing me. क्या कलीसिया, आप इस नजर से देखते हैं कि कलीसिया एक ऐसी जगह पे जहां पर मुझे आशीष पाना है? The church should meet my needs. और कलीसिया मेरी जरूरतों को पूरा करना चाहिए, उस नजर से देख रहे हैं? How do you view the church? How do you view yourself? आप कैसे कलीसिया को देखते हैं? आप अपने आप को, खुद को किस नजर से देखते हैं? Come on, 2 minutes, discuss with someone else. आपको 2 मिनट दिए जाते हैं, आप जल्दी से How do you डिस्कस view करें, it? बात करें इसके Because ऊपर। what you see here is important.
और जो आप देखते हैं वो जरूरी है। All right, all right. Now, I don't know what you've shared with whoever you shared. और मुझे नहीं पता कि आपने अपने गुट में है क्या बोला, क्या समझा। Whatever you have shared, जो कुछ भी आपने बांटा, I hope it also includes this. और मुझे उम्मीद है ये बात भी उसमें शामिल हो। I'm primarily a soldier and part of God's army. आपकी पहली बात ये हो कि आप प्रभु के सैनिक हो और उसकी Amen. सेना का हिस्सा हो। Right? God's ठीक word है। says, God's word clearly says, don't get involved in civilian affairs. और प्रभु का वचन काफी जो है सीधे शब्दों में ये कह रहा है कि अपने शहरी जो मुद्दे हैं और मैं चाहता हूं इस बात को अगर आप इस साल में पकड़ करने के तरीके को बदल देगा। It'll change the way we act. आपके जो है बर्ताव करने तरीके Now, अब the question is, सवाल ये है, that's what God showed. ये प्रभु ने दिखाया। Now, yes, can we be an army? और एक सवाल आपसे, क्या हम सेना बन सकते हैं? If God is going to make us an army, अगर प्रभु हमें सेना बना रहे हैं, He needs to transform us. उनको हमें बदलना होगा। All right? And for that transformation, two questions need to be answered. सवाल का जवाब हमें देना होगा। The first question, सबसे पहला, what do you see? तुम क्या देखते हो? And the second question दूसरा सवाल, is, can these bones live? दूसरा सवाल ये है
क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? Vision and seeing comes before transformation. दर्शन और देखना बदलाव के पहले दिखता है। In Ezekiel 37, verse 2, which we just read earlier, एजिकल 37:2 में जिस तरीके से हमने वो पहले पढ़ा, he led me back and forth among them, the bones, और वो ये कहता है प्रभु ने और हड्डियों की घाटियों में मेरे को इधर उधर and घुमाता गया। he said, I saw a great many bones on the floor of the valley. और वचन ये कहता है कि मैंने उस सूखी हड्डियों को Amen. देखा उस घाटी में। We need to see. हमें देखना है। What do you see? तुम क्या देख रहे हो? Proverbs 29:18 says, without vision, people live carelessly. और नीति वचन 29:18 में ये लेता है बिना दर्शन के लोग जो है वो एकदम लापरवाही से जीते हैं। Without continuously being in a position where you're seeing the right thing, we can end up living carelessly. अगर आप गलत जगह पर रहकर उस चीज को देख रहे हैं तो आप जो है एकदम लापरवाही और एकदम अलग जीवन जी रहे हैं। Amen. Ezekiel saw bones. और एजिकल ने जो है हड्डियों को देखा। So before God transforms us, इससे पहले कि प्रभु हमें बदलाव लेकर आए, बदलाव करें, He changes how we see ourselves and how we see the church. और वो बदलेगा कि किस नजर से हम खुद को देखते हैं और उसकी कलीसिया को देखते हैं। Amen. आमीन। And if He this morning can just help us understand अगर आज की सुबह अगर वो हमारी मदद करते इस बात को समझने के लिए and change how we view ourselves, और इस बात को बदले कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं, change how we view Harvest of Grace Church, और इस नजर को बदले कि किस नजर से हम अनुग्रह की फसल कलीसिया को देखते we हैं, can become this army. हम वो सेना बन सकते हैं। In the illustration He's given और यहाँ पर वो ये दिखाता है is a battlefield, एक ऐसी जंग की भूमि है and after the war is over, it looks silent. और जंग खत्म होने के बाद वो शांत हो जाती है, And long after the battle is over, there's just bones lying there. और जंग खत्म होने के बाद बहुत समय बाद भी वहां पर हड्डियां पड़ी होती Right? हैं। And yet, what God is showing, और तब भी प्रभु ये दिखाते हैं lying within it is the future of His people. और जैसे ये है आगे भविष्य कैसे लोग होंगे, That if He speaks, जब वो बोलेगा these people will arise as an army. उसके लोग एक सेना के तौर पे खड़े हो जाएंगे। So He's effectively asking Ezekiel, what do you see? और इसीलिए वो एजिकल से कहता है कि तू क्या देखता है, And he said, I saw it was full of bones. और वो ये कहता है मैं देखता हूँ कि ये पूरी, Dry, very dry, the bones. और मैंने देखा कि ये जो हड्डियां हैं सूख चुकी है, And he says, our bones are dried, our hope is gone, we are cut off. और वो ये कहता है सूखी हड्डियां हमारे आशा भी उसी तरीके से जो है वो सूख चुकी है और हमारी उम्मीद जा चुकी है। And the church may look dry, कलीसिया सूखी दिख सकती है but it's not dead. पर वो मरी नहीं है, Dryness does not equal death. और सूखापन का मतलब ये नहीं होता है कि वो मर चुका है। Amen. We need to see what is actual, what is actually there without any pretense. और बिना ढोंग के बिना नाटक के हमें वो चीज देखना है जो वाकई में वहां है, All right, we need to see it. हमें देखना है उसे। Ezekiel saw bones, dry bones. एजिकल ने सूखी हड्डियों को देखा। Now, if I ask you, what is your function? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या कार्य है, आपका क्या काम है,
आके उससे all 12 of them. आप इन प्रेरितों के पढ़ने के लिए पूरी किताब पढ़ सकते हैं, पर जब प्रभु को सूली पर चढ़ाया गया था, कहां थे 12 प्रेरित? They all ran away. ये सारे 12 के 12 भाग गए। It was the women that were standing in front. And before you disqualify yourself and think, you know, Lord, I'm useless, listen, Jesus already knows that. और इससे पहले कि आप अपने आप को जो है कोस लें और ये के लिए प्रभु मैं किसी काम का नहीं, मैं तो निकम्मा हूं, आपको बता दे प्रभु इस बात को बराबर से जानता है। I encourage some of you to be at the prayer meeting. मैंने कुछ लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो प्रार्थना सभा में I रहे। just want to let you know, आपको बता दूं, the night Jesus died, जिस रात प्रभु मरे, Jesus asked them to be at a prayer meeting. यीशु ने अपने कुछ लोगों से कहा था कि वो एक सभा में उसके साथ चले। And all the apostles, what were they doing? और सारे प्रेरित क्या कर रहे थे उस रात? They were sleeping. वो लोग सो रहे They were थे, not at the prayer meeting. Okay. वो लोग उसके साथ प्रार्थना नहीं कर रहे थे। And yet, और फिर भी you see, we may see bones. हम हड्डियां देख सकते हैं, We may disqualify ourselves. हम अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। I'm not saying don't come to prayer meetings. I'm just trying to show you Jesus does not disqualify you. और मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना सभा में आओ मत, मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रभु आपको कभी भी नीचे नहीं गिराते हैं। Amen. You can walk. आप चल सकते हैं, But please remember, इस बात को याद रखें। an army can be defeated. एक सेना Means they were defeated. इजराइल जो था वो हड्डी बन चुका था, इसका मतलब वो हराया जा चुका था। And churches and Christians can be defeated. और कलीसिया और मसीह लोग हराए जा सकते हैं We can be lying around like bones. और हड्डियों के जैसे वहां पर बेजान पड़ सकते हैं। But I want to ask you today, पर मैं आज आपसे ये पूछना चाहूंगा, what do you see? आप क्या देखते हैं? Don't just see the bones. Never. Because beyond the bones, there's a God who is raising an army. और सिर्फ हड्डियों को मत देखो, बल्कि उस प्रभु को देखो जो इन हड्डियों में से सेना को खड़ी करता है। And our faith is not in who we are. Our faith is in the God who's chosen us after knowing how we are. और हमारा विश्वास हमारे खुद पर नहीं है, बल्कि उस प्रभु पर है जो इस बात को जानता है कि हम कौन है और फिर भी वो हमें बुलाता है। Amen. All right. So make a list of what you think today. Go home in your prayer time. Make a list of what you think disqualifies you. और घर जाओ, आज की रात में जिस तरीके से तुम प्रार्थना करोगे, जाओ लिखो इस बात को अपनी प्रार्थना के समय में, कौन कौन से ऐसी बातें जो तुमको लगता है, जो आपको लगता है कि आपको गिराती हैं परमेश्वर की See, नजर में, you can see what the bones are, और आप देख सकेंगे कि आपके जीवन में वो हड्डियां क्या हैं। but don't make that the conclusion. पर इस बात को अपनी हकीकत और जो है उसको नतीजा मत बनाओ। You cannot conclude with what you physically see. Ezekiel saw bones. नतीजा मत निकालिए जो आप देखते हैं, उस बात को देख के एजेकियल ने भी जो है सूखी हड्डियों को देखा, पर इस बात का नतीजा नहीं बना है। Amen. With that first question comes the second question. इस पहले सवाल के साथ ही दूसरा सवाल भी आता है, Can these bones live? क्या इन हड्डियों में जान आ सकती You है? list your disqualifications, your bones you can see. But now the question comes to you, can these bones live? और जो पहली बात जिसको मैंने बताया था, इन सारी चीजों को लिख के रखना जो आपको ऐसा लगता है कि आपको योग्य नहीं बनाती, आपको नीचे गिराती है। और दूसरा ये सवाल भी रखना, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? Are you listening? सुन रहे हो आप? Remain bones or can rise up as an army. और यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये हड्डियां मरी हुई सूखी हड्डियां
रह जाएंगी या फिर ये एक बड़ी सेना बनेगी। And we have to consistently live in this place because we live in Mount. We have to consistently come back and see who are we. और ऐसा भी हो सकता है कि हम पहाड़ के एकदम चोटी पर रह के अपने आप को नीचे देख रहे हैं और ये सोचते हैं मैं कितना किसी काम का नहीं हूं, मैं निकम्मा हूं। You are bones that will live. और आप ऐसी हड्डियां हैं जो वापस से जिंदा होंगी। And remember, when Ezekiel is asked the question, can these bones live? और याद रखिए जब एजिकल को ये सवाल पूछा गया था, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? He doesn't say no. और एजिकल ना नहीं कहता। Bones remain bones when we say no, these bones cannot live. हड्डियां हड्डियां रह जाती हैं जब हम ना कहते हैं। Our Christian life and effectiveness ends when we say no. और एक मसीह का प्रभाव तब खत्म हो जाता है जब हम नहीं ना कहते हैं। Amen. A Samaritan woman said yes, and she saved the village. उस सामरी औरत ने हाँ कहा और पूरा गांव उद्धार पाया। Face the facts of who you are. और इस बात के जो है जो तथ्य है इन बात को जान लो कि आप कौन हो। But you've got to say, these bones will live. पर आप